Hello and welcome back to my channel, guys. This is Shrishti Sharma, and this video is dedicated to the ones who are doing BBA, BCA, MBA, MCA, and my this video is literally based on my real life corporate experience. Those who are aspiring, like if I will say these things in pointers, that what are the very four and very five thing which you should be relating to my case is, first of all, आपके दिमाग में ये जो मिथ बना पड़ा है ना कि एमबीए के बाद आपने कहीं से भी एमबीए कर रखा है और आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है. इट्स अ मिथ, फर्स्ट ऑफ ऑल. Second thing, whatever the college placements are said to be given, it's not truth. उनके कुछ भी प्रॉमिस किए हुए काउंसलर्स के जितने भी प्रोमिस होते हैं वो सब फेक होते हैं. आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज फेक, बट इट्स नॉट 110% श्योर until and unless the last batch से आपने कोई कन्वर्सेशन नहीं किया है तब तक आप उन पर भरोसा मत करो. Do one thing, go to their page if you belong to XYZ college. If you want to study in that college, apart from giving the exam, go to that page, try to find people of last batch, try to communicate them, ask about the placement, ask about the teaching skills, ask about how they do things, and then you will come to know that what the college is all about. Then take admission and then go for physical meet of the college. Just don't fall for the infrastructure is not gonna pay your bill, not gonna give you job. What is gonna give you job is the skills, is the expertise, is the courses they gonna offer and how they gonna offer, how often the sessions are there in your college, how often the conferences are there in your college. This will matter a lot. Apart from that, the certifications, if they offer, they say that we will give you the certification, ask for demo, ask for the people with whom they will be sitting, and ask for the ex students who has given this kind of certification and they have got the certification and been certified with it. Until and unless you are provenly told and you are satisfied with yes, this is completely fine, don't go for admission. ठीक है. लाइक अगर आपने पैसे दे भी रखे हैं ना, अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ तो आप डरो मत कि मैंने पैसे दे दिए हैं तो मेरे को पैसे मिलने नहीं वाले. ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, आपके पैसे मिल जाएंगे वापस. क्योंकि आपको ना क्या होता है कि आपको आइडिया नहीं होता है. ठीक है, मेरे साथ ये चीज़ हो रखी है इसलिए मैं आपको रिलेटिवली बोल रही हूँ. हो रखी है इसलिए क्योंकि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया था. आई वॉज नॉट अ पर्सन हु वॉन्टेड टू डू MBA इन द वेरी फर्स्ट शॉट. मेरे को नहीं करना था MBA. आई वॉन्टेड टू सिट एंड प्रिपेयर अगेन फॉर कैट एंड अगेन डूइंग थिंग्स. मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी अपार्ट फ्रॉम गिविंग CAT and apart from getting into MBA. But it was a some kind of, you can say, moral and that competitive pressure from the peer ones कि हम तो कर रहे हैं MBA, तुम भी कर लो, बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है ये वो. तो मेरे को भी लगा कि यार अंधों में काना राजा बनने से अच्छा कि आई शुड ऑल्सो गो फॉर इट. एंड घर से भी था कि हाँ कर लो, बिकॉज ऑन सिटिंग इट विल नॉट बूनफुली हैपन. एंड आई विल नॉट से दैट इट वॉज नॉट बूनफुल, मतलब वो कहीं से बुरा नहीं था, लेकिन अपने आप को टाइम देना, अंडरस्टैंड करना कि आप किस फील्ड के लिए बने हो, क्या करना चाहते हो. गिव दैट पॉज इफ़ यू वांट टू टेक दैट पॉज. इट शुड बी नॉट with other one's preferences कि yes you are doing this work and you are into that job or you are into that course. Take it on yourself. You want to do, then you do. If you don't want to do, you don't do. अदरवाइज फिर वो ब्लेम गेम होगा ना, तो फिर वो बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी और फिर आप बहुत बुरा बोलोगे कि भाई हमने तो बेवकूफ़ी में MBA कर लिया, हमने तो बेवकूफ़ी में BBA BCom कर लिया. आप पहले चूज़ कर लो. आपको CS करना है आप CS करो, आपको CA करना है आप CA करो. आप किसी और की बातों में आके कोई डिसीजन मत लेना. एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सीनियर्स, मैं उन सीनियर्स को भी नहीं कहूँगी जो अभी एसेंचर्स जेनपैक वगैरह में प्लेस्ड है. मे बी यू आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट दैम. डोंट गो फॉर दिस कि हाँ वो आपका सोर्स से लगवा देंगे या फिर रेफरेंस से लगवा देंगे. वो सिर्फ आपका रिज्यूम भेज सकते हैं. ठीक है, उनकी हेल्प बस इतनी है कि वो आपका रिज्यूम भेजेंगे, कुछ तो भेजेंगे कुछ तो भेजेंगे भी नहीं. ठीक है, वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है. और उसके अलावा आपका जो स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ होता है ना, उस पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पहली चीज़, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप ना इस चीज़ के पीछे बहुत जल्दी मत भागो कि आपकी ऑन गोइंग
इन फ्यूचर सैलरी कितनी होने वाली है और क्या आपको बोनफुल मिलने वाला है। कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करो, सिर्फ वेबसाइट से नहीं, एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करके। Why I am saying that? Because you may be fooled by website, you may be fooled by many posts and social media marketing, but you can't be fooled by asking people the very this one feedback from the ex-employees or employees, who those who are working. They will let you know that what's the reality of it. Because in on the very face of the market, everyone is beautiful, everything is very classy, everything is very fancy, but when it comes to the reality check, it becomes very different. वो बहुत अलग तरीके की चीज़ें चली जाती हैं। तो उससे पहले आप कहीं पे भी एडमिशन लो, अगर मैं कॉलेज से बोल रही हूँ तो वहाँ से भी आप क्रॉस वेरीफाई किए बिना कहीं एडमिशन मत लेना, ठीक है। टाइम दो खुद को, सोचो समझो, कुछ नहीं होता। अगर वो आपको प्रेशर बना रहे ना, अभी उनमें एडमिशन खत्म हो रहे, आई विल टेल यू, आई वॉज into that college with a not a bare minimum fees, but with a fees which was not even, you won't even believe that हमारी फीसेस भी अलग अलग थी। वहाँ के लोकल्स की फीसेस बहुत कम थी, हमारी फीसेस बहुत हाई थी, from where I have done my MBA। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज द थिंग कि हाँ, उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि आपने कैट नहीं दिया, बल्कि मैंने कैट दे रखा था। आई गॉट गुड परसेंटाइल, बट द फैक्ट वॉज कि जैसे ही मेरी परसेंटाइल आई एंड दैट सम काइंड ऑफ मार्केटिंग वॉज डन एंड इट वॉज जस्ट फ्लॉन्टेड कि यार तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, एंड आई वॉज demotivated, demoralized, and said that yes, you deserve this and you didn't give an exam and something like that। मैंने बोला आप मेरी मार्केटिंग के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन करवा के, आई हैड अ वेरी बैड टचल विथ वन ऑफ द काउंसलर हु टुक मी टू ग्रेटर नोएडा, बट उनकी भी उतनी गलती थी नहीं, क्योंकि मुझे भी एडमिशन लेना था ना। आई वॉज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि मेरे को एडमिशन लेना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे डिग्री लेके जॉब लेना है, दैट्स इट। मैंने भी एक क्रिस्टल क्लियर कर रखा था, लेकिन जब मैंने बाकियों के साथ इंटरेक्ट किया, मुझे जब बाकी बातें पता चली, आई फेल्ट बैड, बिकॉज मैंने शायद रिसर्च नहीं किया था। तो आप रिसर्च करना ज़रूरी समझे, रिसर्च करें कंपनी के बारे में भी, कॉलेज के बारे में भी, और वहाँ के एक्स एम्प्लॉयज़, किसी भी कंपनी में आप अगर जॉब ढूंढने जा रहे हो, उनसे इंटरेक्ट करो, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। कॉलेज के एक्स स्टूडेंट से इंटरेक्ट करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट फॉल फॉर फॉल्स प्रोमिसेस। फॉल्स प्रोमिसेस इन द सेंस कि हम आपने देखा कि हमारे कॉलेज में ये आए थे, वो आए थे, दैट इज़ नॉट गोना पे यू। Remember that the fees your parents are going to pay, the amount they are charging for just a course, just for a study batch which you can get on online। अगर आपको वो चीज़ करनी ही पीपीटी के माध्यम से है, तो आप वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपको कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट वांट टू बी अ रेगुलर बैच पर्सन, बट यू विल बी फोर्स्ड टू बी अ रेगुलर बैच पर्सन। सो दिस इज द डिफरेंस आई वांट टू से। ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स बिफोर एंड देन टेक अ फाइनल डिसीजन। जब तक आप उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई मत कर लो, उसके ऊपर मत कोई डिसीजन लेना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉज ऑन टू कॉर्पोरेट जर्नी, दैट विल आई विल मेक अ separate video, but this was just a very few glimpse of how you should choose your college before taking admission anywhere, and how this admissions are, and what is the reality check of MBA, BBA, BCA, BCom. This was the reality check, and this is the way you can finalize yourself to take the admission or not। आप सबसे पहले 4 बातें याद रखो। पहला है कि आपको रिसर्च अच्छी करनी है, दूसरी एक्स स्टूडेंट से बात ज़रूर करनी है, तीसरी आप अपने बजट को लेके चलो कि आपने बजट कैसा रखा है, एंड फोर्थ थिंग, inner voice is saying no, then don't go for it। I say that on a personal basis, if it is saying no, then don't go for it, okay। this is my final call, and I'll definitely say कि आप लोगों को एक और बात मैं बता देती हूँ कि there will be circumstances where everything will seem like कि यार ना, अब तो मतलब मे बी आई डोंट हैव एनी चांस, और आई वोंट बी एबल टू प्रूव इट अप। हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लेना, especially I'm talking about corporate culture। Don't go for any organization which is just saying as a hike, I'll give you this amount of pay। They will not, until and unless you are aware of things। अभी आप किसी चीज़ में हो, like if you are doing, मेरा तो सजेशन यही होगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप केपेबल हो तो जॉब करना शुरू कर दो साथ साथ।
एक एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत प्रेरियर पता चल जाएंगी, रियलिटी चेक मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम होगा ये डिसाइड करने का कि मुझे इसी फील्ड या इसी लाइन में आगे प्रोसीड करना है कि नहीं करना है, या फिर मैं एक एक्सपीरियंस अच्छे लेवल पे हो जाएगा कि मैं इसमें एक्सपर्टीज़ हूँ, तो मैं और क्या अपग्रेड करके अपनी एक्सपर्टीज़ को और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो भी एक आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपनी एक्सपर्टीज़ को समझने के लिए जो आपका खुद का कोर एक्सपर्टीज़ है ना, डू वन थिंग, चेक योर रिजल्ट्स। अपने जो रिपोर्ट्स कार्ड्स आपने देखे होंगे उसको चेक करने की कोशिश करो। अगर समझ नहीं आ पा रहा कि किससे बात करके जाने हम, तो अपने रिजल्ट को चेक करो, ठीक है। अपने कैलिबर को चेक करो। कैसे चेक करोगे वो कैलिबर? आप कोई खुद का टेस्ट दे के देख लो यार। बहुत सारे आपने कैट एग्जाम्स दिए होंगे, जीमैट दिए होंगे, गेट दिया होगा, बहुत सारे पेपर्स दिए होंगे, या फिर बीकॉम बीबीए में भी आपने कोई पेपर्स दिए होंगे। उसमें अपनी परफॉर्मेंस को देखो, आप किस चीज़ में अच्छे थे। उस बेसिस पे अपने आप को डिसाइड करो। अपने सीनियर्स से पूछो, अपने टीचर्स से पूछो, टीचर्स आर द बेस्ट गाइड। अपने पेरेंट्स से पूछो। I know they must not be aware of that what line you are gonna choose, but they are aware of what they are aware of कि what my kid can do, मेरा बच्चा किस चीज़ के लिए केपेबल है, वो उन्हें अच्छे से पता होता है। तो आप उनसे भी सजेशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन द चॉइस शुड बी, द फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स, दैट यू आर नॉट गोना रिग्रेट फॉर एवर फॉर लाइफ कि भाई मैंने ये किया तो किसी के बेसिस पे कर दिया, नहीं। आप करने वाले हो, आपका डिसीजन है, आप ओनर हो उसके। ये चीज़ सोच के करना, ठीक है। रही बात कॉर्पोरेट वीडियो के ऊपर, तो वो तो मैं अभी बनाने वाली हूँ, मैं उसको भी पोस्ट कर देती हूँ। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू।